Hello friends, this is Mr. Akash Vasan Nesarkar, lecturer in chemistry, Department of Chemistry, KLS Gokte PU College of Commerce and Science, Belgaum. Students, in our last session, we have completed the topic solid state. And if you have any doubt regarding that topic, then you can contact me on WhatsApp or you can come and meet me in the college. So students, in today's session, we are going to begin with a new physical chemistry topic, that is surface chemistry. So this topic is completely theoretical one, and it is very interesting because we are going to learn various new terms in this topic. And also this topic has a weightage of 6 mark in a final examination. You will get one question of 1 mark in a part A section and 5 mark one question in a part D section. So let us try to understand the meaning of a surface chemistry. We know that the surface chemistry, it is a branch of a science, and also we know that what is a chemistry. But what is the term surface here? Surface chemistry, we can generally define like this: surface chemistry, the chemistry which appears on the surface of any substances. But how we are going to define that chemically, so that is important. So before I define the surface chemistry, let us try to understand what is surface first. So surface, it is a physical boundary of any condensed phase. Condensed phase means liquid or solid, is considered as a surface. और इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस इज अ लेयर विच सेपरेट द टू फेजेस. जिस टू फेजेस को सेपरेट करता है उस लेयर को हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं. और वी कैन ऑल्सो से दैट it separate one phase from the other. Any boundary which separate the one phase to other, that boundary is called as a surface. So the chemistry which appear on this surface is called the surface chemistry. Now let us define this chemically. The study of physical and chemical phenomenon that occur at the interface of two phases. सो जो भी फिजिकली और केमिकली प्रोसेस होते हैं एट द इंटरफेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू फेजेस, उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं. और सरफेस इज अ लेयर ऑफ सेपरेशन ऑफ टू फेसेस. सरफेस क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लेयर ऑफ सेपरेशन ऑफ टू फेजेस. और आप इस तरह से भी कह सकते हो, सरफेस इज अ लेयर वेयर वन फेस गेट एंड एंड अनदर फेस बिगिंस. सो दैट इज व्हाट अ सरफेस. सो इस यूनिट में हम बहुत सारे टर्म्स लर्न करने वाले, जैसे कि वी आर गोइंग टू स्टडी द टर्म एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड also the colloids. So let us try to learn the term adsorption. जैसे कि ये वर्ड एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से ही निर्माण हुआ है. एब्जॉर्प्शन, दैट इज ABSORPTION. So instead of B we are writing that D, that is called as the adsorption. So what is this adsorption? So adsorption is nothing but the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. सो ध्यान दे के इसको पढ़ो और एक बार. द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन इज नथिंग बट व्हाट? सेटलिंग, सेटल होने का. सो सेटलिंग ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज. कौन से मॉलिकुलर स्पीसीज? द मॉलिकुलर स्पीसीज में भी गैसेस और मॉलिकुलर स्पीसीज में भी लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एड्जॉर्प्शन रैदर दैन इन द बल्क. सो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ सरफेस और बल्क.
बल्क मतलब थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर तक जाने वाला, और सरफेस मतलब बॉडी के सिर्फ ऊपर पे ही, सॉलिड बॉडी कंसिडर करो या लिक्विड बॉडी कंसिडर करो, उसके सिर्फ ऊपर में ही रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। उसके जब अंदर तक जाएगा, सॉलिड और लिक्विड जो भी बॉडी है उसके जब अंदर तक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बल्क कहते हैं। सो बल्क इज नथिंग बट व्हाट, इनटू द बॉडी, और सरफेस मतलब ऑन एट द सरफेस, ओनली एट द टॉप ऑफ द सब्सटेंसेस। Okay, so the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. So adsorption को बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। So adsorption is nothing but what? The gas molecules. Now here we are having the activated charcoal, जैसे कि कोयला, okay, activated charcoal. On this activated charcoal, the gas molecules are adsorbing on the surface of activated charcoal. मतलब क्या, ये जो गैस मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे ही एडजॉर्ब हो रहे हैं, एडजॉर्ब, ओके, इसके अंदर नहीं जा रहे, ओके। दिस अंदर का जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, बल्क कहते हैं। अंदर का जो पोर्शन क्या है वो बल्क कहते हैं। जब गैस मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे तब एब्जॉर्प्शन कहेगा, हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। सिर्फ सरफेस पे ही प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्प्शन। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज, सो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज, कौन से मॉलिकुलर स्पीसीज है इस डायग्राम में, गैस मॉलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस, किसके सरफेस के ऊपर, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर, रैदर देन इन द बल्क, नॉट इनटू द बॉडी ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल, सरफेस पे ही गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ पे सिंपल सा मैं जनरल एग्जांपल दूंगा, जब भी हम चॉक लिख के बोर्ड पे लिखते हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन, क्योंकि चॉक लेके हम बोर्ड के सरफेस पे ही लिखते हैं, ना कि चॉक बोर्ड के अंदर तक जाता है। सो दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन। सो अनदर एग्जांपल इज व्हाट, द सिलिका जेल, ओके। आपने कभी शॉपिंग किया होगा, लैपटॉप का बैग खरीदे होंगे और या कोई लगेज का बैग, उस बैग में आपको स्मॉल ए मिलते हैं, क्या हो, हाँ, जब बैग के अंदर एक छोटे छोटे पाउच रहते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है डेसिकंट और सिलिका जेल, डू नॉट ईट। सो उसका यूज़ क्या होता है, उस बैग के अंदर कौन सा भी नया बैग लो या लगेज लो, उसके छोटा पाउच रहता है वाइट जैसा, उसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट, सी इट इज़ वेरी सिंपल, बैग बहुत दिन तक शॉप में रहेगा, सो बैग के अंदर मॉइस्चर जमा ना होना चाहिए, इसलिए सिलिका जेल उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है उसके सरफेस के ऊपर। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, ओके। सो चॉक लेके बोर्ड पे लिखना, दैट इज एडजॉर्प्शन, ओके। और कौन सी भी नई बैग में वो सिलिका जेल पॉच रहता है, ओके, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, दैट प्रोसेस इज आल्सो व्हाट, एडजॉर्प्शन। सो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस है नेचर में, एंड उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। मीन्स व्हाट, द accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as a adsorption. Now, so यहाँ पे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है। सो यहाँ पे दो टर्म हमको सीखने को मिलते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न द टू terms. The first one is adsorbate and the second one is adsorbent. Now, what is that adsorbate? The molecular species accumulates at the surface. So जो भी molecular species accumulates हो रहा है surface पे, उसको हम क्या कहते हैं, adsorbate. And the adsorbent is the material on the surface of which the adsorption is taking place is called adsorbent. और जिस सरफेस पे वो एड्जॉर्ब हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट। स्टूडेंट ये बहुत ही कंफ्यूज होता है, क्या, एड्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। सो सिंपली मैं इसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे जो
गैस मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे, उसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट। और जिस सरफेस पे वो एड्जॉर्ब हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट। जैसे कि एक सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सो यहाँ पे एड्जॉर्बेट क्या है, सॉल्यूट है, एंड एड्जॉर्बेंट क्या है, सॉल्वेंट है। सोल्यूट एब्जॉर्बेट, सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंट। सो आपको यहाँ पे वर्ड ट्रेस करना है, सॉल्यूट जैसे कि टी ई, एब्जॉर्बेट टी ई, और सॉल्वेंट वी ई एन टी, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, बी ई एन टी, एब्जॉर्बेंट। सो सोल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा याद रखो, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी called solute and the substance which is present in larger quantity is called solvent. So with the help of this we are going to remember the words absorbate and the word absorbent. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सो एड्जॉर्बेट किसको कहते हैं, चॉक को एड्जॉर्बेट कहते हैं, और एब्जॉर्बेंट किसके कहते हैं, बोर्ड को। अगर हमने चॉक एंड बोर्ड का एग्जाम्पल लिया, सो चॉक इज एड्जॉर्बेट एंड बोर्ड इज व्हाट, एब्जॉर्बेंट। समझ में आ रहा है? ओके। सो यहाँ पे केमिकली एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। फर्स्ट वन, एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब गैसेस। सो एक्टिवेटेड चारकोल विल एब्जॉर्ब द गैसेस, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा एक्टिवेटेड चारकोल गैसेस एब्जॉर्ब का है। सो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल क्या हुए, एड्जॉर्बेट, और एक्टिवेटेड चारकोल क्या हुआ, एड्जॉर्बेंट। ओके। सो एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब द गैसेस। सो गैसेस को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट। कौन से गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। सो ऑल दिस गैसेस कैन बी एड्जॉर्ब ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल। सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हाट, प्लैटिनम और निकल मेटल एड्जॉर्ब द हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, एड्जॉर्बेट, प्लैटिनम और निकल क्या हुआ, एड्जॉर्बेट। एंड थर्ड वन, सिलिका जेल एड्जॉर्ब्स मॉइस्चर लाइक ड्राइंग ऑफ एयर। सो मॉइस्चर रिमूव करने के लिए जो स्मॉल पॉकेट रहते हैं, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, देसी कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एज सिलिका जेल। सो सिलिका जेल हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। ओके। सो यहाँ पे और एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट्स हो रहे सरफेस के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट कहते हैं, और जिस सरफेस पे वो हो रहे उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट। ओके। सो हमेशा याद रखो, डोंट गेट कन्फ्यूज। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, एब्जॉर्प्शन। okay, so what is the absorption? Now this is the main word whose meaning we know generally, absorption। absorb करना मतलब absorption। so what is absorption? It is a phenomena in which atoms, molecules or ions enters into the bulk of the substance rather than on the surface of the substance। जो भी atoms molecule है वो enters करते हैं bulk of the substance, मतलब सब्सटेंस के अंदर जाके बैठते, सब्सटेंस के ऊपर ही नहीं रहते, सब्सटेंस के अंदर जाके बैठते, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल, सिंपल जनरली एग्जांपल, अगर हमने स्पॉन्ज लिया और वाटर में डीप किया तो स्पॉन्ज हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑल द वाटर, okay, not only on the surface but sponge will absorb all the water throughout its body। सो बल्क में भी जाता है, सरफेस में भी पानी रहता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। और सिंपली यू कैन टेक अ चॉक एंड डीप इन अ वाटर फॉर सेवरल मिनट, यू कैन सी दैट द वाटर विल गो इन टू द बॉडी ऑफ द चॉक। बल्क में भी वाटर प्रेजेंट रहेगा, जब भी आप चॉक ब्रेक करोगे तो अंदर तक आपको वाटर नज़र आएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। okay, where the atoms or molecules or ions enters into the bulk मतलब into the body of any substances, substance के अंदर जाके बैठता है, so that is called as the absorption। और अगर आपको बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि गुलाब जामुन खाते हो ना बच्चों, गुलाब जामुन। सो गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद उसको पाक में डालते, सो व्हेन वी ऐड द गुलाब जामुन इनटू द पाक, सो गुलाब जामुन विल एब्जॉर्ब दैट स्वीट, वो सब पाक को एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जब भी हम चाय
चाय और बिस्किट लेते हैं, जैसे कि पार्ले जी बिस्किट चाय में डुबाओगे तो क्या होता है, वो कंप्लीटली चाय को एब्जॉर्ब करता है, बाद में गिरता है। सो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है ना? सो एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट वॉट, मॉलिक्यूल्स आयंस एंटर्स इनटू द बल्क ऑफ द सब्सटेंस रैदर देन सरफेस। सरफेस के ऊपर ही उतने नहीं रहते, वो अंदर जाके बैठते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सो याद रखो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, गुलाब जामुन का एग्जांपल याद रखो। ओके, चॉक डीप्ड इन वाटर और चॉक डीप्ड इन इंक फॉर सेवरल मिनट्स, और ये चार बिस्किट का एग्जांपल याद रखो। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ओके, और बेटर एग्जांपल इज व्हाट, स्पॉन्ज डीप्ड इन वाटर। जब भी हम स्पॉन्ज डीप करते हैं वाटर पे, सो स्पॉन्ज हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑल द वाटर, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। सो एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आर हियर। क्लोरीन गैस डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कि हम लैब में क्लोरीन वाटर यूज़ करते हैं। सो हाउ टू मेक अ क्लोरीन वाटर, सिंपली वी पास द गैस इनटू द क्लोरीन वाटर। सो यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या होता है एंड क्लोरीन वाटर, और वाटर क्या है। सो यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या है, एड्जॉर्बेट है, एंड वाटर क्या है, एड्जॉर्बेंट। हमेशा याद रखो, एड्जॉर्बेट and absorbent, and gold dissolve into the mercury. So mercury has the ability where it gets gold dissolve, so gold dissolve into mercury. So this process is called absorption. Now the next term, that is a desorption. So it is exactly opposite to that of adsorption. Adsorption क्या है, मॉलिक्यूल सरफेस पे आके बैठते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन। और जब भी वो मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। वेयर द टर्म डी ई इज नथिंग बट व्हाट, रिमूवल। डी इज नथिंग बट व्हाट, रिमूवल। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। सो यहाँ पे देखो अब, सो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है, सब्सटेंस आके सरफेस पे ऊपर बैठ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डिसॉर्प्शन भी हो रहा है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। द रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। सो आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ तो विंटर के सीज़न में, ओके, मॉर्निंग तक आपको फॉग नज़र आएगा आपके कार के विंडो पे या ग्लास पे, लेकिन जब टाइम इंक्रीज़ होता है, सन रेज फॉल होता है, तब वो फॉग नज़र नहीं आता है। सो यूजुअली जो भी एड्जॉर्ब हुआ रहता है ग्लास के ऊपर, वो रिमूव होते जाता है when sun rays fall on the glass, so it is what, डिसॉर्प्शन। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल रिमेंबर करके आपको ये डेफिनेशन याद करना होगा, बिकॉज यू आर गेटिंग द 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो आपको ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज डिसॉर्प्शन। सो यूजुअली थिंक ऑफ द एग्जाम्पल, देन ट्राई टू राइट down the answer. So what is desorption? Process of removal of adsorbed substances from the adsorbent is called डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट वन, सी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बेट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन ए बी। सो यहाँ पे फर्स्ट इमेज में क्या है, ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर में मैंने स्पॉन्ज डिप कर रहा हूँ, completely I am dipping the sponge into the second image, and third image, after that I am removing the sponge from the glass of a water. ओके, सो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन आपको नोटिस करना होगा। द फर्स्ट, वी आर हैविंग द वाटर, ग्लास ऑफ वाटर and sponge. After dipping the sponge and removing the sponge from this glass of water, we are getting the empty glass. It is nothing but what, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल किधर प्रेजेंट है अभी, स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज इट इज़ अ टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट विच एड्जॉर्ब ऑल द एड्जॉर्बेट। सो यहाँ पे एड्जॉर्बेट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, एड्जॉर्बेट है, किसके सर्फ बल्क के अंदर गए हो, स्पॉन्ज के अंदर गए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एग्जाम्पल। सो एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्ज डीप्ड इन वाटर। ओके, सो स्पॉन्ज क्या करता है, सब पानी को अपने अंदर खींचता है
थ्रू आउट द बॉडी, यूनिफॉर्मली अपने अंदर सब पानी को खींचता है और ग्लास को क्या करता है, एम्प्टी करता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. नाउ let us study the differences between adsorption and absorption. In first column we are having the adsorption and in second column we are having the absorption. So the first difference is adsorption. याद रखो example chalk on board, that is adsorption. So it is a surface phenomena. So adsorption is what? Surface phenomena. It is not a bulk phenomena. Whereas absorption, sponge dipped in a water. एग्जाम्पल याद करके डेफिनेशन याद करो. स्पॉन्ज डिप्ड इन वाटर, एब्जॉर्प्शन. chalk on board, that is adsorption. So बहुत ही सिंपल है. Okay, don't get confused. So adsorption, it is a surface phenomena. Absorption, it is a bulk phenomena. The second difference is adsorption is rapid in the beginning but slowly decreases. Okay, adsorption क्या होता है, initially it is rapid in the beginning but लेटर ऑन इट गेट्स डिक्रीजेस. स्लोली क्या होता है, डिक्रीज होता है. जैसे कि हम विंटर सीजन में देखते हैं फॉग ग्लास के ऊपर अपीयर होता है लेकिन स्लोली वो डिसॉल्व भी होता है. ओके, रिमूव भी होता है फ्रॉम द एब्जॉर्बेंट. सो इट इज़ अ रैपिड इन द बिगनिंग बट स्लोली इट इज़ डिक्रीजेस. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट यूनिफॉर्म रेट. जब भी हम स्पॉन्ज लेके वाटर में डीप करते हैं सो स्पॉन्ज विल एब्जॉर्ब ऑल द वाटर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी. ओके, सो इट ऑकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, एक रेट के हिसाब से वो होता है. ओके, थर्ड डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज ग्रेटर एट द सरफेस. इसका मतलब क्या है, एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना. सो सभी मॉलिक्यूल सरफेस पे आके बैठेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. बराबर, सभी मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन जो भी रहता है सरफेस का वो क्या होता है, बढ़ जाता है. ओके, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम थ्रू आउट द सब्सटेंस. एब्जॉर्प्शन क्या है, ये तो बल्क फिनोमेना है. जो कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे रहेगा और बल्क पे रहेगा या नीचे रहेगा उस कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा क्योंकि ये प्रोसेस ही यूनिफॉर्म है. ओके, जब भी हम स्पंज लेके वाटर में डीप करोगे तो सभी स्पंज में वाटर प्रेजेंट रहेगा विथ द सेम कॉन्सेंट्रेशन. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम थ्रू आउट द सब्सटेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, एग्जांपल ऑफ एड्जॉर्प्शन. सिलिका जेल एड्जॉर्ब द वाटर वेपर्स. जैसे कि हमने डिस्कस किया, कौन सा भी नया बैग में आपको ये सिलिका जेल मिलेगा विच विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर. एंड एब्जॉर्प्शन, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब द वाटर. सो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इट इज़ एक सॉलिड है जो वाटर एब्जॉर्ब द वाटर. जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है किसी भी सब्सटेंस में या एयर में वो एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं पाउडर. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. सो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. अगर आपको मीनिंग पता है एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का भी तो एग्जांपल, देन यू कैन राइट डाउन द डिफरेंसेस आल्सो वेरी इजीली. जैसे कि मैंने कहा था ये टॉपिक थ्योरेटिकल है एंड इंटरेस्टिंग है एंड आप न्यू वर्ड्स सीख रहे हो इस टॉपिक में, जैसे कि एड्जॉर्बेट, एब्जॉर्बन, डिसॉर्प्शन. ओके, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, सरफेस, बल्क. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग नाउ. इसी तरह से हम ज़्यादा एग्जाम्पल आगे जाके देखेंगे. नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लर्न द टर्म सॉर्प्शन. ओके, अभी सॉर्प्शन का मतलब क्या है, हमने डिसॉर्प्शन का मतलब पता चला. पहले एड्जॉर्प्शन होता है और जो भी एड्जॉर्ब हुआ है वो रिमूव होने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन होते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिसॉर्प्शन. नाउ व्हाट इज द सॉर्प्शन, a process during which both adsorption and absorption occur simultaneously is called sorption. जहाँ पे adsorption भी होता है और थोड़ी देर के बाद में absorption भी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, sorption. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लकड़ी का टुकड़ा लो और लकड़ी का टुकड़ा, सूखा टुकड़ा, हाँ, वो लेके पानी में डुबाओ सिर्फ 15 सेकेंड के लिए. तो क्या होगा, पानी में डुबा के बाहर निकालो तो आपको पानी के लेयर सिर्फ सरफेस पे ही नज़र आएंगे.
जैसे कि मैंने ये फर्स्ट डायग्राम में दिया है एड्जॉर्प्शन, पानी के लेयर्स, ये प्लस साइन पानी के लेयर्स समझ लो, और ये वुड का टुकड़ा है। सो जब भी हम वुड, ओके, लकड़ी का टुकड़ा एक 15 सेकेंड के लिए पानी में डुबा के रखे तो क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। पानी के मॉलिक्यूल सरफेस पे उतने ही एड्जॉर्ब होते हैं। लेकिन द सेम वुड इफ यू कीप इन अ वाटर फॉर सेवरल मिनट, तो देन द waters enters into the bulk of the wood, पानी लकड़ी के अंदर भी जाता है, तब क्या कहते हैं हम उसको, एब्जॉर्प्शन। सो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। जहाँ पे पहले एड्जॉर्प्शन होता है, बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, एंड लेटर ऑन इट इज कॉल्ड एज अ सॉर्प्शन। सो प्रोसेस ड्यूरिंग विच both adsorption and absorption occur simultaneously is called sorption. ओके, सो फिलहाल आज की क्लास में इतना काफ़ी है। सो मेन थिंग, सो क्वेश्चन कैन बी कम फॉर 1 mark, दैट इज व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, what is sorption, what is absorption, what is desorption, what is adsorbate, what is adsorbent. सो इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और गिव मी द एग्जांपल ऑफ एड्जॉर्प्शन, और sponge dipped in a water, it is a kind of which process, whether it is adsorption or it is a adsorption. So don't get confused, okay? So go through it and try to make a note for it. So thank you.